قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اقرار توحید تو بعد دین اسلام دا دوسرا اور بنیادی رکن ہے نماز۔ اسلام دا اے بنیادی اور دوسرا رکن نماز اتنا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس نو ہر مسلمان دن اور رات دے اندر 5 مرتبہ نماز دا فریضہ ادا کردہ ہے، نماز پڑھدہ ہے۔ جس طرح نماز ہر مسلمان تے دن اور رات دے اندر فرض ہے، نماز دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی دے اندر کتے بھی نرمی نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی زندگی دی آخری رات، زندگی دا آخری دن، جس دے اندر امی عائشہ صدیقہ نو جاندی وار اے پیغام دیتا ہے، اے میری عائشہ میری امت نو بتلا دینا الصلاۃ الصلاۃ، نمازاں ضائع نہ کر دینا، نمازاں دی حفاظت کرنا، نمازاں دا خیال کرنا۔ یعنی اگر گل مک دی مکائیے، زیادہ لمبی بات نہ کریے، مسلک اہل حدیث، مسلک دیوبند، مسلک بریلویہ، حتیٰ کہ اہل و تشیع مسلک دے اندر انہاں دے بڑے بڑے علماء دیاں کتاباں فتاوے اٹھا کے دیکھ لے، وہ کسے ایک مسلک دے اندر، کسے ایک گروہ دے اندر بھی نماز دے معاملے اندر کسے قسم دی نرمی نہ لکھیے، نہ کسے نے بیان کیتی۔ یعنی اے کوئی وہابیاں دا اہل حدیثاں دا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تواڈے میرے ایمان دا، اسلام دا مسئلہ ہے۔ نماز دے معاملے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سانس تک کسے قسم دی نرمی نہیں کیتی۔ ہاں البتہ ایک بندہ سفر تے نکل گیا ہے، لیکن نماز دے اندر تخفیف ضرور ہوئی ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، آپ نے فرمایا حالت بیماری اندر بھی نماز پڑھے۔ محبوب جی اے اٹھ نہیں سکتا چار پائی تو، ایک قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اے دے جسم اندر ساہ موجود ہے، اے دا عقل کم کردہ ہے؟ جی محبوب جی کردہ ہے، ساہ موجود ہے۔ فرمایا بیٹھیا جاندہ ہے، بے کے اشارے نہ پڑھ لے، لیٹیا جاندہ ہے، لیٹ کے اشارے نہ پڑھ لے۔ سب تو بڑا جڑا مسئلہ ہوندہ ہے نا جنگ دے اندر، جنگی حالات دے اندر، لیکن رسول پاک نے حالت جنگ اندر نماز پڑھن دا طریقہ بھی حدیث اندر بیان فرما دیتا ہے کہ اگر لوگ جنگ تے چلے جان میدان جہاد اندر، ایک طرف کفار دیاں فوجاں لگیاں نے، گولیاں تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن ایک جماعت کھڑی ہو کے پہلے نماز ادا کر لے، باقی لڑے، اور جڑی نماز ادا کر کے آگے آئے اے پیچھے ہو کے پھر بھی نماز ادا کرے۔ یعنی کہ نماز اتنا اہم ترین اسلام دار دوسرا رکن ہے۔ اگر آپ بیعت کسی دے کولو لیا کر دینا، ایک گروہ آیا کہ سونے محبوب جی مسلمان ہونا چاہنے ہیں،
لیکن نماز کے مسئلے اندر کوئی تھوڑی جی نرمی آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا وہ دین ہی نہیں، اسلام ہی نہیں جہدے اندر نماز ہی نہیں، پھر تہاڈا کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہے اگر نماز نہیں پڑھنی؟ جس طرح نماز کے معاملے اندر دین اسلام اندر نرمی کوئی نہیں بھی اے 5 وقت نماز بولو کی ہے، بولو تھوڑے تھوڑے بولو ماشاءاللہ، فرض ہے۔ اللہ سانو 5 وقت با جماعت نماز تکبیر اولا دے نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نماز ہر مسلمان تے 5 وقت فرض ہے، یاد رکھو اسی طرح نماز نو سنت دے مطابق ادا کرنا بھی ہر مسلمان تے فرض ہے۔ اے نہیں بھی میرا امام اینج جاندا ہے تے میں اینج نماز پڑھ لاں، میرے مرشد پاک اینج جاندے نے میں اینج نماز پڑھ لاں، میرا مسلک میرا منج اینج جاندا ہے میں اینج نماز پڑھ لاں۔ سارے دنیا دے مولوی، میں اے نہیں کہندا کہ کسے اہل حدیث عالم دے پیچھے چل پے، نہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ایک طرف رکھ کے نا قرآن پاک اور قرآن پاک تو بعد صحیح البخاری، صحیح البخاری تینوں جویں نماز پڑھاندی ہے اسی طرح پڑھتا جا۔ وہ اگر وہابیاں نہ ملتی ہے نماز ٹھیک ہے، بریلویاں نہ ملتی ہے ٹھیک ہے، دیوبندیاں نہ ملتی ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نماز دے حوالے دے نال جمعہ پڑھایا تے ایک ساتھی نا بڑا تذبذب دا جڑا نا شکار ہو چکے ہیں، انہیں کہا جی میں دیوبندی بھائیوں کو جاننا انہوں دا طریقہ اپنا ہے، وہابیاں کو جاننا انہوں دا طریقہ اپنا ہے، بریلویاں کو جاننا انہوں دا طریقہ اپنا ہے۔ قاری صاحب میں کراں کی 10 منٹ، میں تے بڑے چھچو پنج پیا واں، میں کتے کسی چوتھی سڑک تے نہ نکل جاواں 3 چھڈ کے، کوئی یہ حالت دسو، میں کیوں پریشان ہونا ہے؟ یہ حالت تینوں میں صرف اینا دساں گا، تو آج نا مترجم جا کے اپنی مرضی دی جتھوں مرضی نا صحیح بخاری لے لے، وہ دی کتاب الصلاۃ کھولنی ہے، وہ تو پڑھنا ہے۔ کہندا میں تے پڑھیا نہیں، مینوں ایڈی سمجھ نہیں لگنی، میں تو مترجم لے لے، تو پڑھ ضرور انہوں، کوشش کر کے پڑھ۔ جدوں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے گا سمجھ نہیں لگے گی، اوویں صحیح بخاری چوکے تو اپنے کسی مولوی کو چل جا، ساڈے کول آ جا، جتھے دل کر دے چلا جا۔ لو جی انہیں بخاری شروع کر دیتی پڑھنی، میرا خیال کوئی 4 کے 5 مہینے انہیں محنت کیتی ہے، پڑھنی شروع کر دیتی ہے، تو وہ جڑا نا نماز پڑھن لگ پیا تے کہندا قاری صاحب ہن میں نماز پڑھنا تے مینوں ہن گھر والے میری شریکہ برادری جین نہیں دیندے۔ میں کی آندے نے نماز تو روک دے نے؟ کہندا نہیں، وہ یہ کہندے نے تو وہابی ہو گیا، تو وہابیاں والی، میں تو وہابیاں والی نہیں پڑھدا، تو نبی پاک والی نماز پڑھدا ہے۔ نماز بھی وہابیاں والی دس مینوں، نماز بھی بریلویاں والی، نماز بھی دیوبندیاں والی، اور نماز محمدی نبی پاک والی نماز۔ اگر نبی پاک والی نماز پڑھن تو بعد کوئی تینوں کہندا ہے وہابی، ٹھیک ہے کہہ لین دیو۔ نماز محمدی سنت دے مطابق نماز دا ایک ایک رکن سیکھنا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک بڑا معروف جملہ ہے ساڈے معاشرے اندر، یار نماز تے پڑھدا ہے نا، پڑھن دیو کچھ نہ کو، جتھے لگا ہے کہ یہ جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یار لگا پڑھدا تے پیا ہے۔ اے جملہ بڑا خطرناک ہے۔ میں دی ایک سادہ مثال دینا، کو میں سادہ جہا ہوں، میرے کو اینا علم تے کوئی نہیں، میرے کو سادہ سادہ مثالاں نے، وہ مثالاں تے غور کرو۔ ایک بندہ اپنے گھر جاندا ہے، اپنی بیوی نو جا کے کہندا ہے امی جی مینوں پانی دیو۔ نہیں گل دی سمجھ لگی، توجہ کرنا۔ ایک بندہ اپنے گھر اندر جمعہ پڑھ کے جاندا ہے تے جا کے کہندا ہے اپنی بیوی نو، اے میری ماں، اے امی جی مینوں روٹی دے۔ کی خیال ہے؟ صحیح لگا ہے؟ صحیح لگا ہے؟ انہوں ہر بندے نے کہنا ہے جدے اندر ذرا چنی بھی عقل ہے نا، ذہنی توازن ٹھیک ہے، انہیں یہ کہنا ہے اللہ دیا بندیا ٹھیک ہے، جو کچھ تو کہہ رہے ہیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سانو اینی گل سمجھا کہ بیوی نو ماں کہنا ٹھیک ہے۔ میں سوال کرنا کی ہویا، بیوی بھی تے عورت ہے، وہ دی ماں بھی عورت ہے، جے ماں کہہ لیا تو کی ہو گیا، کی حرج ہے؟ نہیں، کہنے لگا نہیں معاملہ بڑا خراب ہے۔ معاملہ کیوں خراب ہے؟ آئے یہ رشتہ بیوی والا ہے، یہ بیوی کیا جائے گا؟ میں کیا ہے یہ بیوی بھی عورت، یہ ماں بھی عورت، یہ بہن بھی عورت، لیکن سب دے نام الگ الگ گے، پہچان الگ الگ گے، ایک دوسرے دے نال اختلاط نہیں ہون دیندے۔
नहीं जिहड़ी बीवी है बीवी कहो, मां नूं मां कहो, बहन नूं बहन कहो, बहन दे नाल रिश्ता बहन वाला, मां दे नाल मां वाला और बीवी दे नाल बीवी वाला। मैं क्या इत्थे तुहाडी जुबान नूं की हुंदा है, इत्थे क्यों नहीं आंदे जिहड़ा जिथे लगा है लगा रहंदे हो, नहीं आंदे इत्थे सही नहीं। मैं क्या नमाज पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक पढ़ो, लेकिन ये जुमला ना कहो कि जिथे कोई लगा है लगा रहंदे हो। अगर ये गल करिए, सही अल बुखारी की बड़ी मरूफ हदीस है, एक बंदा मस्जिद अंदर आया, रसूल पाक मस्जिद अंदर तशरीफ फरमा ने, इन्हें आके नमाज पढ़ी, वुजू किया है, नमाज पढ़ी है, नमाज तो बाद सलाम फेरे है, आपनू सलाम पेश किया है, आपने वालेकुम अस्सलाम किया, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, ऐ प्यारे लौट जा, चला जा, जाके नमाज पढ़, तू नमाज पढ़ी कोई नहीं। हालांकि इस बंदे ने वुजू भी किया, क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदा भी किया, सलाम तक नमाज इन्हें पढ़ी है। आपनू कहना तो चाहिए तू नमाज तो पढ़ी है लेकिन सही नहीं पढ़ी, नमाज तो पढ़ी है सही नहीं पढ़ी, लेकिन नहीं, आपने की फरमाया है तू नमाज पढ़ी कोई नहीं। दूसरी मरतबा गया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरिया, फिर आया, आपने फरमाया इरजी, लौट जा, फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा चला जा, नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। दूसरी मरतबा हत्ता कि चौथी मरतबा इसी तरह पढ़ी, आपने फरमाया तो नमाज नहीं पढ़ी। महबूब जी मैनू तो इंज दी पढ़नी आउंदी है, तुसी दस दिओ किवें पढ़नी, तुसी दस दिओ किवें पढ़नी है। फिर आपने पूरी नमाज का उसनों तरीका सिखाया भी तेरे अंदर ना क़याम अंदर गलती है, फिर जदों रुकू जाना है, रुकू तो बाद खड़ा होना है, उन्होंने कहते ने कौमा, रुकू तो बाद खड़ा होना उन्होंने कहते ने कौमा, तेरा कौमा भी ठीक कोई नहीं, रुकू भी ठीक कोई नहीं, रुकू की हालत के अंदर ए तेरे लक की जिहड़ी हालत है ना, ए सर की हालत है, ये भी ठीक कोई नहीं। इस तो बाद सजदे जाना है, फिर सजदा तेरा बड़ी जल्दी वाला है, इत्मीनान कोई नहीं, सुकून कोई नहीं, फिर सजदे तो बाद उठना, इनू कहते ने जलसा, एक जलसा है इस्तराहत, वो तशहुद वाला, ये जलसा, जलसा उन कहते ने सजदे तो बाद उठना, ए तेरे जलसे के अंदर भी सुकून कोई नहीं, फिर सजदा करके इसी तरह सलाम फेरता है। ए मेरे प्यारे, अगर इंज नमाज पढ़ना है तो इंज दी नमाज रब ने कबूल करनी नहीं। तो आइए नबी पाक सल्लम दी सुन्नत के मुताबिक नमाज तुसां ते मैं पढ़नी है, तो किवें पढ़नी है। अज दी इस गुजारिशात मुलाकात के अंदर बड़ी तवज्जो करना बड़ा अहम तरीन उनवान है। अज दे जुमे अंदर इंशाअल्लाह मैं बुनियाद बनागा तो कोशिश करांगा नमाज का आगाज़ कर दईए, जितों तक इंशाअल्लाह गुफ्तगू चलेगी ठीक है, वरना अगले जुमे अंदर उस तो आगे शुरू कर देवांगे। ए बुनियादी जिहड़ियां ने ना, मैं तुहाडे सामने नमाज का तरीका बयान करन तो पहले, सीखन तो पहले तुहाडे सामने मैं इंशाअल्लाह रहमान तकरीबन 5 हदीसां, किन्नियां हदीसां, 5 हदीसां तुहाडे सामने बयान करनियां ने। ए 5 हदीसां बयान करन तो बाद, सुनन तो बाद, याद करन तो बाद फ़ायदा पता की होएगा। एक तो अज के उनवान के मुतलक तुहाडी मेरी दिलचस्पी वध जाएगी। दूसरे नंबर ते नमाज के अंदर साडा लगाओ, नमाज के अंदर ज़्यादा तवज्जो मज़ीद बढ़ जाएगी, ज़ौक़ शौक बढ़ेगा। और तीसरे नंबर ते ये 5 हदीसां नूं सामने रखन दे नाल असां नमाज़े नबवी सुन्नत के मुताबिक नमाज किंज अदा करनी है वो असां गौरो फिक्र करना शुरू कर देवांगे, वो मसले पूछने शुरू कर देवांगे। एक लगन जी लग जाएगी कि आया कि साडी नमाज सही है या नहीं है, उहदे बारे असां तहकीक शुरू करांगे। जदों असां तहकीक शुरू करांगे खुद ब खुद साडी नमाज के अंदर हुसन पैदा होएगा, साडी नमाज के अंदर जवानी पैदा होएगी, साडी नमाज के अंदर अल्लाह दी रहमत का नज़ूल होएगा, साडी नमाज के अंदर अल्लाह के फजलो करम दे नाल सुकून ते इत्मीनान अल्लाह पैदा फरमानगे। लो फिर पहली हदीस सुनो ते तवज्जो करना, तवज्जो है ना मेरे वाल माशाअल्लाह। साजिद की हो गया तेन, खादा पीता है ही कुछ? अच्छा चलो फिर खैर है, तू तो यार बिल्कुल हाँ गोडे छड़ दे। असल गोडे जड़ा ना अबू दाऊद की रवायत है, गोडियां तो आपने ना जुमे अंदर फड़ के बहन तो सख्ती ना मना किया, भला क्यों? एक गोडे जो बंदा फड़दा है ना फिर हलूरे होने शुरू हो जाते हैं। हाँ वो जी ना सुस्ती काहली होंगी, लिहाजा गोडे ना फड़ो, जो गोडे छड़ जाओगे इंशाअल्लाह सुस्ती निकल जाएगी। तवज्जो है ना, हुण मेरे वाल वेखी रखना, ठीक है ना। अल्लाह तेनों सेहत वाली, ईमान वाली, शान वाली जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो करो, पहली हदीस, जदों बंदा वुजू करके पाक साफ होके आके कहता है ना अल्लाह अकबर, हालत नमाज अंदर दाखिल हो जाता है,
रसूल पाक ने फरमाया, सोने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मिठी प्यारी सोहनी जुबान चो इरशाद फरमाया, जिमें ए नमाजी बंदा नमाज से दाखिल हुंदा है, आसमान तो अल्लाह दी रहमत ठाठां ते जोश मारदी हुई ज़मीन ते उतर के इस अल्लाह दे नमाजी बंदे दा इस्तकबाल करदी। अल्लाह दी रहमत उस नमाजी दा इस्तकबाल करदी है जिहड़ा बंदा हालत नमाज अंदर आ जाता है, नमाज शुरू करता है। वो मुबारक होन नमाजियो, तुहानू 7 नहीं 700 मरतबा सलाम होवे तुहानू कि तुहाडे इस्तकबाल वास्ते आसमान तो रब दी रहमत पई उतरदी है। ये नमाज वाला अमल मामूली ना समझो। ओ बड़ा मशहूर है ना शेर है, मैनू शेर ते खैर याद नहीं, उहदे जुमले याद ने, जो जे एक कतरा मिल जाए मैनू तेरी रहमत दा ते काम बन जाए मेरा एक कतरा। वो शेर दे अंदर शायर ने ना एक कतरा क्या है रहमत दा, अगर मैनू मिल जाए ना मेरी जिंदगी समर जाए, मेरा कबर हशर सब कुछ समर जाए, मेरी जिंदगी जी ना लेखे लग जाए, अल्लाह जन्नत दा दाखला अता कर देगा एक कतरे दी वजह दे नाल, रहमत दा एक कतरा। लेकिन इत्थे की फरमाया है, वो जेड़ा बंदा नमाज ज़ौक शौक ना आके पढ़दा है, नमाज दी हालत अंदर दाखिल हुंदा है, आपने फरमाया अल्लाह दी रहमत दा कतरा नहीं, अल्लाह दी रहमत दा कोई हिस्सा नहीं, बल्कि सारी अल्लाह दी रहमत उतर के ते उहदा इस्तकबाल कर दी। नमाजियो बड़ियां मुबारक होन तुहानू। दूसरी रिवायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों बंदा हालत नमाज अंदर दाखिल हो जाता है, नमाज शुरू कर देंदा है तकबीर तहरीमा कह के, बस इंज कि वह अपने दुखड़े अपने रब अगे रख के ते रब दे नाल गल्लां ते बातां शुरू कर देंदा है। ओ परेशान लोगो, किसे दर ते ना जाओ, आओ आओ हालत नमाज जरा सुन्नत दे मुताबिक पढ़ते सही ना 2 नफल, अल्लाह तेरी जिंदगी दी काया ही पढ़ के पलट दे। सानू ते 10-10 20-20 साल हो गए नमाज़ां पढ़दे, मत्थे घसांदे, काले कर ले मत्थे, सफ़ा पाड़तियाँ, मुसल्ले पाड़ते, तस्बीहां दे मनके घमा घमा के जिंदगी का हिस्सा गुजारता, लेकिन साडे हालात के अंदर चेंजिंग नहीं आई। वजह की है? सुन्नत के मुताबिक असी ज़ौक शौक ना कोई सजदा कीता ही कोई नहीं। किवें हो सकता है सुन्नत के मुताबिक बंदा आके सजदा करे ते आसमान वाला रब साड़ी जिंदगी की काया ना पलटे भला? यानी नमाजी बंदा जड़ा नमाज अंदर दाखिल हुंदा है इंज है कि जिवें रब दे नाल गल्लां पिया करदा है। और हदीस अंदर भी मौजूद है, बंदा जिवें जिवें अल्लाह कोलों मंगदा है, अल्लाह दे कोलों पुछदा है होर की चाहिदा है, ऐ भी तैनूं देता, आ भी तैनूं देता, आ भी तैनूं देता, होर की चाहिदा है। तीसरी हदीस, 2 हदीसां याद हो गई ना। रहमत की कर दी है, की कर दी है, की गल है, रहमत की कर दी है नमाजी बंदे दा इस्तकबाल, रहमत की कर दी नमाजी बंदे दा। मेरी कोशिश है तुहानूं मैं गल्लां याद करावां, उतों दी ना नगावां, उतों दी नगाउणियां होण ते फिर मैं जल्दी जल्दी 2 ऐतां पढ़ां ते 2 हदीसां पढ़ के 2-3 शेर सुट्टां ते माशाअल्लाह मजमा गर्म हो गया। नहीं यार, मैं तुहानूं कुछ याद करवाना चाहना है कि तुसीं जदों निकलो तुहाडे ज़हन अंदर दिल अंदर कोई बात हिफज होए। सब तो पहली हदीस, पहली बात कि जदों नमाजी बंदा नमाज शुरू करता है अल्लाह की रहमत उहदा की करदी है इस्तकबाल। और दूसरे नंबर ते नमाजी बंदा जदों नमाज की हालत अंदर दाखिल हो जाता है अल्लाह ना की करता है, गल्लां करता है, अल्लाह ना सरगोशियां करता है। 2 हदीसां हो गई। तीसरी हदीस, नबी पाक ने अपनी जिंदगी अंदर सब तो ज़्यादा जिहड़ी दुआ की है ना, वो दुआ सुनो। आपने नमाज के मामले अंदर अल्लाह के कोलों पनाह मंगी है। भला किस तरह? नबी पाक सल्लम ने अल्लाह के अगे हथ फैला के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफ़उ। अल्लाह मैं पनाह मंगना वा ऐसी नमाज के कोलों जिहड़ी मैनू फ़ायदा ना दवे। यानी पूरी कायनात दे इमाम जिन्हां दे कोलों असां दीन लिया है, जिन्हां दे कोलों नमाज लै रहे हैं, जिन्हां दे कोलों नमाज सीख रहे हैं, उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत की है। मेरे पैगंबर जिंदगी अंदर अपने रब कोलों रो रो के दुआ कीतिया करते सन, अल्लाह मैं पनाह मंगना ऐसी नमाज के कोलों भी मैं नमाज भी पढ़ा, सजदा भी करा, वक़्त भी लगावा, लेकिन वो नमाज चुक के मुँह ते मार दी जाए। अल्लाह मैं ऐसी नमाज के कोलों पनाह मंगना वा।
ला तनफ़अ सलात, अगर सानू नमाज पढ़दियां 10 साल गुजार लेने, 10 साल पहले भी मैं झूठ बोलता सा, अज नमाजी बन के भी झूठ बोलना वा। ला तनफ़अ सलात, हज़रत जी तेरी नमाज ने तेनू फायदा नहीं दिता। अज तो 10 साल पहले भी मैं लोगों का जीना हराम करता सा, शैतानियां करता सा, लड़ाइयां पाना सा, रिश्तेदारियां तोड़ता सा, किसी दे ताल्लुकात वेख के जलदा सा, सड़दा सा, जुल्म ते ज़्यादतियां करना सा। अज मैं हज करके ते 10 साल हो गए ने, फजर दा नमाजी बन गया वा, तहज्जुद गुजार बन गया वा। अगर अज भी मैं उंज दा शैतान वा, ला तनफ़अ सलात, हज़रत तेरी नमाज ने तेनू फायदा नहीं दिता। अगर मैं मां दा बाप दा ना फरमान सा और अज नमाजी बनन तो बाद अम्मी अबू दा दिल दुखाना मैं नहीं छड़िया। ऐ नौजवान मेरे वीर, ला तनफ़अ सलात, तेरे सजदियां ने तेनू फायदा नहीं दिता। अज तो 10 साल पहले अगर मैं हराम खोरियां करना सा, 10 साल तो बाद, 10 साल नमाज पढ़न तो बाद, सजदे करन तो बाद, मैं मत्थे ते मिराब बनान तो बाद भी अगर मैं हराम खोरियां, 2 नंबरियां, बेईमानियां, झूठ, गीबत, चुगली, ये नहीं सब को छड़िया, ला तनफ़अ सलात, हज़रत तेरी नमाज ने तेनू फायदा नहीं दिता। नमाज इंज दी पढ़ो कि नमाज पढ़ के निकलिए साड़ी जिंदगी बदल जाए, जिंदगी दी अंदर एक नूर पैदा हो जाए, जिंदगी दी अंदर एक राहत पैदा हो जाए। इंज लगे कि जिंदगी ते असल है ही मेरी है, इंज लगे कि जिंदगी ते असल मैं जी रहा वा, इंज लगे कि जिंदगी मेरी फुल वर्गी हौली अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान वाली जिंदगी पे गुजारना वा, मुहब्बत वाली जिंदगी पे गुजारना वा, अल्लाह ते ओदे रसूल दी मुहब्बत दे अंदर रह के जिंदगी पे गुजारना वा। अल्लाह सानू फायदे वाली नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडा एक एक क़याम, रुकू, सजदा मालिक सोनिया नमाज दी हालत दे अंदर तमाम तर अल्लाह एक एक रुकन नू अपनी बारगाह दे अंदर सुन्नत दे मुताबिक अदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह नमाज़ां दे नाल नाल साड़ी जिंदगी दे अंदर राहत, इत्मीनान और बरकतां दा नज़ूल पैदा फरमा दे। अल्लाह ए जितने भी आए ने तेरे नमाजी बंदे ने, यकीनन मैं समझना तुहाडे सारियां चों ज़्यादा खताकार, गुनाहगार, बेइलम, आजिज़, इनकसार, बेकार, असल मैं तुहाडे च खड़ा ज़्यादा, सब तो ज़्यादा, लेकिन हर इंसान दे कोलों गलतियां, कमियां, पेशियां, नमाज़ां दा अग्गा पिछा कोई ना कोई हो ही जाता है। मालिक सोनिया मैं दुआ करन लगा, इल्तिजा करन लगा, अल्लाह जिंदगी दी आखिरी नमाज तकबीर उला दे नाल सुन्नत दे मुताबिक पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिंदगी दा साडा आखिरी जड़ा सजदा होए, मालिक सोनिया उधरों सांस निकल रहा होए, लेकिन वो सजदा भी ऐसा करन दी तौफीक अता फरमा जड़ा सदका तुहाडी मनशा, तुहाडी चाहत, तुहाडी तलब दे मुताबिक है। यकीनन अल्लाह असां जिन्नियां नमाज़ां पढ़ियां ने जिवें तुसां चाहते सो, जिवें सुन्नत दे मुताबिक सी नहीं पढ़ियां गईयां, लेकिन मालिक सोनिया जो पढ़ियां ने तेरी रज़ा वास्ते अपनी बारगाह अंदर मंजूर ते मकबूल फरमा। चौथी हदीस, 3 हदीसां याद हो गई ना, दुहरावां ते ना फिर, हाँ नहीं तो मैं फिर शुरू तो दुहरा देवां। 3 हदीसां। चौथी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्वा उन्नास साराकतन लज़ी यसरिकु सलातहु, ए मेरे सहाबा, ए कायनात दे लोगो, दुनिया ते चोर जड़े ने ना वो बड़े बड़े चोर ने, बड़े बड़े वड्डे डाकू ने, नामो नामी नेट चोर ने, लेकिन मेरे सहाबा सब तो वड्डा जड़ा चोर है ना वो नमाजी है। सहाबा इकराम ते सिकतातारी हो गया, खामोशियां हो गई, नमाजी बंदा तो फिर चोर, फिर सब तो वड्डा चोर। आपने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, एक बंदा आया मस्जिद अंदर दाखिल होया, जल्दी जल्दी वज़ू किया, आके 2 4 5 7 ठूंगे मारे, नमाज पढ़ी ते सलाम फेर के चला गया। ए मेरे सहाबा, कायनात दा बदतरीन ते सब तो वड्डा चोर ए नमाजी बंदा है। सत्यानाश करके रख दिता इस बंदे ने नमाज नूं।
नमाज के अंदर चोरियां कीतियां, क्याम पूरा ना किया, क्याम अंदर चोरी की है, रकू की वारी आई है, रकू अंदर चोरी की है, सजदे की वारी आई है, सजदे का सत्यानाश करके रख दिता है, ना इत्मीनान ना सकून ते ना उहदे अंदर कोई राहत। इंज सी जिवें पिछे कोई पुलिस लगी है, चोर लगे ने, इहदा सारा घर उजड़ जाएगा, दुकान उजड़ जाएगी। हाँ यानी कि दुकान दे दुनियादारी दे ख्याल रख के जल्दी जल्दी कार्रवाई पाई, नमाज पढ़ के निकल गया। ऐ मेरे सहाबा सब तो वड्डा बदतरीन चोर है ते ए बंदा चोर है। हुण तुसी खुद अंदाज़ा करो कि नमाज सुन्नत के मुताबिक सिखनी किड्डी तुहाडे मेरे वास्ते जरूरी है। ये ना होए कि असां ला इल्मी दे अंदर चोर बन जाइए, ला इल्मी दे अंदर साड़ियाँ नमाज़ां बर्बाद हो जान, ला इल्मी अंदर साड़ियाँ तिलावतां ते साडे सजदे ते साडे क़याम ते साड़ियाँ तहज्जुदां ज़ाया चलियां जान। इस वास्ते लाजम है, ज़रूरी है, तुहाडे मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि असां खुद चल के वक़्त दे के सुन्नत के मुताबिक नमाज सीखण दी कोशिश करिए, कावश करिए। इंशाअल्लाह सीखोगे, बर वक़्त तशरीफ़ लिया के सीखोगे। बहरहाल हालत बड़ी नाजक लगती है। अल्लाह ताला तुहाडे सारियां ते रहमत फरमाए। पंजवीं हदीस फिर इंशाअल्लाह और रहमान आगे असां तरीका जड़ा है ना वो तफसील देना शुरू करते हैं। 4 हदीसां, पंजवीं हदीस सुनो। ये हदीस भी बुनियाद है अज के मौजू की। अगर ये हदीस भी बयान ना करिए तो मौजू बयान नहीं हो सकता। पंजवीं हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ी नमाज है ना वो नमाजी नूं बद दुआ देंदी है। जिहड़ी नमाज है ना वो नमाजी नूं बद दुआ देंदी है। अल्लाह अगे हथ चुक के बद दुआ करदी उहदे खिलाफ कि ऐ अल्लाह इस नमाजी बंदे नूं बर्बाद करके रख दे, ज़ाया कर दे, तबाह कर दे, इहदा सुकून, इहदा चैन सब कुछ खत्म कर दे। नमाज अल्लाह दे हाँ दुआ बद दुआ कर दी। केड़े बंदे दी दुआ वा जिहड़ा ना नमाज बद दुआ कर दी है। सुनो, आपने फरमाया एक बंदा आया, उस बंदे ने सब तो पहली गलती ये की है, अपनी दुकान ते बैठा रहा, अपने कारोबार अंदर बैठा रहा, अपने घर बैठा रहा, मोबाइल चल रहा है, घर के अंदर गपशप हो रही है या गाहकां दे नाल डीलिंग हो रही है। इनू पता है 4:15 ते असर की जमात खड़ी होनी है, पता पूरा है, घड़ी ये कोल मौजूद है, सहूलत ये कोल मौजूद है, सब कुछ पता है। नमाज़े जुम्मे का आगाज़ जिहड़ा है वो किन्ने बजे? 12:50 ते शुरू हो जाना है, पता सारा है। लेकिन ना मोबाइल के उपर मगन है, कारोबार अंदर मगन है। अच्छा कोई गल नहीं, मौलवी नूं झट खाप तप लैन दे ते मैं आखिर ते चला जावांगा। वो आया लेट, जान बुझ के वक़्त नूं टाल दिता, आके फिर वज़ू किया तो बड़ी जल्दी ना वज़ू किया, वज़ू करके आके मुसल्ले ते खड़ा हो गया। फिर इन्हें की किया, अपने दिल नूं हाज़र ना किया नमाज अंदर, यानी कि दिल अंदर ओही ख्याल है मैं जड़ा ना 2 सजदे करके सलाम फेर के चला जावांगा तो जाके मैं फलाने कोलों लैने पैसे, फलाने दे देने, फलान लिखना, यानी कि जो कुछ करके आया सारा कुछ नमाज के अंदर सोचता पिया, ख्याल करता पिया। यानी नमाज के अंदर भी कारोबार, नमाज के अंदर भी घर, नमाज के अंदर भी दुनियादारी नूं रख के सारे ख्याल दिल नूं हाज़र ना किया। फिर उस बंदे ने की किया है, उस बंदे ने रुकू, सजदा, कौमा और जलसा इस्तराहत के अंदर बड़ी जल्दी की है। 4-5 ठूंगे मारे, सजदे कीते, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम, ये मस्जिद चो बाहर निकलता है। तो यह जड़ी नमाज है ना ये अल्लाह दे हाँ पेश हुंदी है। तो फिर इस बंदे नूं पता की कहंदी है नमाज बोल के, तकूलू तकूलू ज़य्यअकल्लाहु कमा ज़य्यअतनी, ऐ अल्लाह ऐ नमाजिया जिवें तू मैनू फड़ के बर्बाद करके रख दिता है, अल्लाह तेनू बर्बाद करके रख दे। जिवें तू मेरा सत्यानाश किया है अल्लाह तेरा सत्यानाश कर दे। और जिवें तू मेरा सुकून छीने है अल्लाह तेरी जिंदगी का सुकून छीन ले, अल्लाह तेरियां रातां दा सुकून छीन ले, अल्लाह तेरे बिस्तर का सुकून छीन ले, अल्लाह तेरियां दौलतां का सुकून छीन ले। ओ बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ज़ाया हो जाए। ओ तू बर्बाद हो गया, तबाह हो गया अगर नमाज ने बद दुआ कर छड़ी है। ते ये नमाज फिर आसमान वाल रब दे हाँ पेश की जाती है। जदों आसमान वाल चढ़ती है अल्लाह नहीं वेखना चाहता उस नमाज नूं, अल्लाह उस टुटी भुजी
भन्नी हुई नमाज, वो बेवक्ती नमाज, बेसुरी जी नमाज, उसनू फड़ के ते गंदे जे कपड़े च लपेट के ते फरिश्तियां दे हत्थ दे के अल्लाह जमीन ते भेजदे ने। ये बंदा जिवें मुसल्ले तो उतरदा है, मस्जिद चो निकलदा है, घरों निकलदा है नमाज पढ़ के, ते फरिश्ते चुक के नमाज खिंच के दे मूँह ते मार के कहिंदे ने, जा नमाजिया लै जा अपनी नमाज चुक के, इहो जी नमाज दी रब नू कोई जरूरत नहीं। तुहाडियां मेरियां जिंदगियां चो सुकून निकल गया, माल दौलत सहूलियात ने, औलाद बच्चे वे, घर बार कारोबार सब कुछ हैगा, एक हैगा नहीं तो कोई 2 घंटियां दा 2 मिनट दा जिंदगी सुकून कोई नहीं। वजह की है? साडियां नमाज़ां दे अंदर सुकून कोई नहीं, ये बददुआ लग गई है। कारोबार अंदर बरकतां निकल गई, वजह की है? जिस तरह असा नमाज के नाल कीता है तो ये नमाज की बददुआ साडे कारोबार का सत्यानाश कर गई है। ये नमाज की जी बददुआ जिहड़ी है ये साडे इलम नू रोड़ के लै गई है, साडी शोहरत नू लै गई है, साडी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया है। वजह की है? नमाज के अंदर सुकून कोई नहीं। अगर कोई तुहाडे अंदरों सवाल करे, कारी साहब मैं जिंदगी अंदर सुकून ना जीना चाहना वा, मैं अर्ज करांगा, ऐ मेरी भैन, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, नमाज अंदर सुकून पैदा करना तेरा काम में, और तेरी जिंदगी दे अंदर हर किस्म का सुकून पैदा कर देना अर्श वाले रब रहमान दा काम में। कारोबार अंदर सुकून आएगा, बरकत आनगियां। मैं एक छोटा जिहा वाकया बतौरे इसलाह, जाहद भाई तवज्जो करना है, वाकया तुहाडे मेरे काम आने वाला बड़ा कमाल दा साजिद भाई वाकया, तवज्जो करना। जिंदगी के अंदर सुकून किड्डी वड्डी अल्लाह की नेमत है। रात को अगर सुकून के नाल सुकून की नींद सौना है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, सुकून किड्डी वड्डी नेमत है अल्लाह की। ये उहदे कोलों पुछ जिहदी जिंदगी का यह सुकून निकल गया। एक साडे हाजी साहब है, उन्होंने जिंदगी के अंदर बड़ा कुछ किया, बड़ियां 2 नंबरियां कीतियां, बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने हदायत दे छड़ी, माशाअल्लाह दीन वाल आ गए। तो वह असा जड़ा ना लंघते टपदे वो हाजी साहब को चले जाने, बजुर्ग ने उन्होंने कोल चले जाने। मेरी नज़र के अंदर मेरा ख्याल है उन्होंने ये इलम नहीं कि मेरे प्लाट किन्ने ने, दुकाना किनियां ने, यानी कि जदों तक वो कागजात कंप्यूटर अंदर ना देखे उदों तक उन्होंने याद नहीं होंदा कि मेरी ज़मीन किन्नी है, जायदाद किन्नी। यानी इतनी दौलत, औलाद, अहलो अयाल, हर दुनिया की नेमत मौजूद है। एक मरतबा असी बैठे हुए हाँ उन्होंने कमरे अंदर, मैं हाजी साहब को गुजारिश की, हाजी साहब मैनू ये दसो, तुहानू अगर अल्लाह पूछे कि जिंदगी के अंदर कोई चीज़ मंग लै, तुसी की मंगोगे? क्योंकि तुहाडे को तो हर नेमत मौजूद है। माशाअल्लाह नमाजी तुसी हो, हाजी ने कर ले, उमरे कर ले, सदका खिरात सब कुछ करते हो। मैं जो सवाल किया ना मुल्तान वाले हो, यकीन जानो हाजी साहब गिड़गड़ा के रो पे ते अखां साफ करन लग पे, आंसू साफ करन लग पे। मैं हाजी साहब मैं कोई बुरी गल तो नहीं की, मैं ये पूछिया है ताकि साढ़े भी गल काम आ जाए। तुहाडे कोई इनियां नेमतां ने, अगर तुसां अल्लाह कोलों कुछ मंगना चाहे कि जिंदगी अंदर ए मेरी ख्वाहिश दिल दी पूरी नहीं हुई, तो वो केड़ी नेमत अल्लाह कोलों मंगोगे? कह लगा कारी साहब दुनिया की हर नेमत मेरे को मौजूद है, अगर मेरे को मौजूद नहीं ना, रात की नींद मेरे को मौजूद नहीं, मैनू जिंदगी दे 28-29 साल गुजर गए ने, कोई रात ऐसी नहीं जिस रात के अंदर मैं कोई गोली खान तो बगैर आराम किया होए। मेरी रात की नींद, रात का सुकून मेरी जिंदगी अंदर नहीं। अगर अल्लाह मैनू कहे ना सारी दौलत वापस दे दे, मैनू दे दे वापस, या वंड दे लोगों के अंदर, मैं सारा कुछ वंडन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन ये बदले अंदर सिर्फ अल्लाह को मंगागा कि रात का एक हिस्से का सुकून मंगागा। नबी पाक ने फरमाया है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका, ए अल्लाह मैं पनाह मंगना वा मिनल गिना। अल्लाह माल ते दौलत, जिहड़े मालदार ने इस दुआ नू वजीफे नू याद करो। ए माल जिहड़ा बंदे वास्ते फितना बन जाता है, मालदारो अल्लाह दे कोलों रो रो के दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल गिना मिन फित, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन फितनतिल गिना। ए अल्लाह
कसरत माल दौलत और इस दे फितने दे कोलों मैं तेरी पनाह चाहना वा। बड़े बड़े दौलतमंद जना दे कम्मां अंदर पै गए, नशियां अंदर पै गए, शराबां अंदर पै गए, फहाशियां अंदर पै गए। अल्लाह माल दिता ही, लेकिन इस माल अंदर मैनू सुकून अता कर दे। मालिक सोने मैं दुआ करना वा जिन्होंने अल्लाह सोने माल इज्जत दौलत सब कुछ दी है, नाल नाल सुकून जैसी नेमत भी अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी इत्थे कोई आए ने इन्हां अंदर परेशान है, अपनी रहमत दे नाल परेशानी दूर फरमा दे। आइए तवज्जो कीजिए, अल्लाह पाक ने की ऐलान फरमाया, हुण खुद तवज्जो करो कि 5 हदीसां सुनन तो बाद किड्डा जरूरी है कि असां नमाज दा तरीका सीखिए। ते कुरान पाक ने की ऐलान फरमाया, अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़रा अपनी ज़ुबान नबुव्वत जो ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ कामयाब हो गए मोमन, फलाह पा गए मोमन, कामयाबियां नू छू गए मोमन। अल्लाह कायनात दे अंदर मोमन ते बड़े बड़े ने, हर बंदा कहंदा है मैं मोमना, मैं मोमना दी जमात अंदर आ, ऐ साडी जमात मोमना दी है, मैं मोमना, ओ भी मोमन है, ओ भी मोमन है। अल्लाह केड़े मोमन ने जड़े कामयाब हो गए, केड़े मोमन ने जड़े कामरान हो गए, केड़े मोमन ने जड़ी जिंदगी दे अंदर कामयाबियां नू छो लिया। अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ओ मोमन कामयाब हो गए जिन्हां दियां नमाज़ां अंदर खुशू आ गया, जिन्हां दियां नमाज़ां अंदर खुशू आ गया, जिन्हां दियां नमाज़ां दे अंदर इत्मीनान आ गया, जिन्हां दियां नमाज़ां अंदर सुकून आ गया। इन्हां ने नमाज़ां पढ़ियां, बड़े नशियां अंदर झूम झूम के पढ़ियां, रब दे प्यार दे अंदर डोबे ला ला के नमाज़ां पढ़ियां, सोने पैगंबर दियां यादां दे अंदर गिर के डूब करके नमाज़ां पढ़ियां। अगर क़याम कीता बड़े ज़ौक़ दे नाल तसल्ली ना क़याम कीता, अगर सजदा कीता ते बड़ी तसल्ली दे नाल सजदा कीता, अगर इन्हां ने रुकू कीता है बड़ी तसल्ली दे नाल रुकू कीता है। इन्हां ने नमाज़ां नू ठहर ठहर के पढ़िया, मुहब्बत दे अंदर पढ़िया, इन्हां ने रब दे प्यार दे अंदर नमाज़ां नू अदा कीता। उन्हां दियां नमाज़ां खुशू खुजू वालियां बन गईयां, इधरों नमाज़ां खुशू ते खुजू वालियां बन गईयां। दूसरी तरफों मैं इन्हां दे दाएं हाथ दे अंदर अपनी सन्नत दे सर्टिफिकेट कुरान दे अंदर जारी कर दिता। क़द अफ़लहल मुअमिनून, ओ मोमिनो तू कामयाब हो गया है, तू कामरान हो गया है, क्योंकि तेरी नमाज सुन्नत दे मुताबिक तू कामयाब है। ए अल्लाह सोने हुन नमाज़ां अंदर खुशू किवें पैदा करिए, नमाज़ां अंदर खुजू किवें पैदा करिए, नमाज़ां नू सुन्नत दे मुताबिक किवें पढ़िए। आइए रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर है, मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया पूरी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ओ कायनात दे लोगो नमाज इंज पढ़ो जिवें मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु नू पढ़दियां वेखिया जे। ए अल्लाह असां ते नबी पाक दा दौर ही नहीं पाया, असां ते नबी पाक दा चेहरा अनवर नहीं वेखिया। ए अल्लाह असां ते नबी पाक दा क़याम ते रुकू ते सजदे कोई नहीं वेखे। ए अल्लाह नबी दे शबो रोज किवें गुजरे असां ते कोई नहीं वेखे। फरमाया नबी पाक सल्लम दियां ए सारियां बातां सहीहुल बुखारी सहीहुल मुस्लिम सही इब्ने खुज़ैमा सियासता दी सूरत अंदर पैगंबर दी एक एक बात तुहाडियां अखां दे सामने मौजूद भी है और महफूज भी है।
آپ نے کائنات دے لوگاں نو فرمایا نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا اے. ایدے اندر نہیں ذکر فرمایا مذکر دا سیگا, نہیں فرمایا مؤنث دا سیگا, بس اے فرمایا کائنات دے لوگو میرے امتیو نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا جے. یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں نو. آپ نے عام حدیث بیان کر چھڑی ہے بھی نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا. یہ اندر مرد بھی آ گئے تے بولو عورتاں بھی. یہ اندر یہ نہیں تخصیص کیتی جائے گی عورتاں دی نماز الگ ہے تے مرداں دی نماز دا طریقہ ہی الگ ہے. ذخیرہ حدیث اندر اے بات کتے بھی موجود نہیں, محفوظ نہیں. اے بات دا حوالہ کوئی کائنات دا شخص نہیں دے سکتا کہ امی عائشہ نو نبی پاک نے بات فرمائی ہوئے عائشہ میں تے صحابہ نو نماز سکھانا تو عورتاں نو نماز سکھا دے کیونکہ عورتاں دا طریقہ الگ ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے نہیں فرمایا کیونکہ جویں دی نماز مرداں دی ہے اوویں دی نماز. یہ پتہ نہیں کتھوں تخصیص کر لئیے. تو ایک حضرت صاحب کہنے لگے قاری صاحب فرق نہیں ہے. میں کہا کوئی فرق نہیں. کہنے لگا پکی گل ہے. میں پکی گل ہے. کہندا پھر سوچ لے. میں سوچیا ہے تو گل کر جڑی کرن والی ہے. آندا پھر سوچ لے بھی مرد عورت دی نماز سے کوئی فرق نہیں. میں کہا حدیث دے اندر مرد عورت دی نماز دے اندر قیام تو لے کے رکوع تو لے کے قومہ سجدہ جلسہ استراحت سلام تک ہو بہو انجی ہے جویں مرد دی نماز ہے عورت دی نماز ہے. دے اندر کوئی فرق نہیں, کوئی حدیث ایسی نہیں فرق والی. کہنے لگے پکی گل ہے. میں کہا بالکل پکی گل ہے. کہنے لگا پھر اے دس کہ عورت جدو نماز پڑھ دی ہو تو دوپٹہ لے کے پڑھ دی, مرد دوپٹہ لے کے نہیں پڑھ دے. میں انہیں کی جواب دواں؟ کوئی تھوڑا جا میں علم ہوندا تے مینوں سوال نہ کردا. میں اللہ دے بندے دوپٹہ لینا نماز دا حصہ نہیں گا. یہ تو میں تو یہ دسنے کہ ساڈیاں عورتاں بس اگوں پچھوں بازاراں چ انج پھیر آਉਂਦੀਆਂ نے, انج ہی سارے نوں میل آਉਂਦੀਆਂ نے. بس جدوں نماز دی واری آਉਂਦੀ ਉਦੋਂ دوپٹہ لیندی. میں تواڈے گھر چ یہی کلچر ہے. وہ میرے نال لڑ نہیں پیا, ناراض نہیں ہو پیا. کہنا تو میرے گھر تے گیا. میں گھر تے نہیں گیا, میں تیری گل دا تینوں جواب دے رہا تے لے رہا. اللہ دے بندے او سر دے اوپر دوپٹہ رکھ کے عورت نماز پڑھے, یہ نماز دا حصہ نہیں گا. یہ تے عام حصہ ہے. جویں شلوار ٹکنیاں تو اونچے کرنا یہ نماز دا حصہ نہیں گا. یہ تے عام مسلماناں دا لازم فرض ہے. بازار اندر ہوئے تاں بھی شلوار اوپر ہوئے, بازار دے اندر نہیں نماز دی حالت اندر ہے پھر بھی اوپر ہوئے. اسی طرح عورتاں واسطے بھی ہے کہ نماز دی حالت دے اندر ہوئے دوپٹہ پھر بھی رکھے, پردہ پھر بھی کرے. اگر نماز دی حالت چو باہر نکل جائے, ہاں ضرورت واسطے بازار اندر کسی اپنے محرم دے نال جائے تے پھر بھی پردہ کر کے جائے. اے نماز دا حصہ پردہ دوپٹہ نہیں. اے تے عام حالات اندر بھی فرض لازم ہے. اے تے خود انہاں نے تخصیص کیتی ہے. عورت جدو سجدہ کرے او دا جکاؤ کنج دا ہونا چاہیے ہے, مرد سجدہ کرے او دا جکاؤ انج دا ہونا چاہیے ہے. تے جدو عورت جلسہ استراحت واسطے بیٹھے او اس طرح بیٹھے, اور جدو مرد بیٹھے او اس طرح بیٹھے. یہ تواڈیاں تخصیصاں کیتیاں نے, لیکن حدیث نماز محمدی دے اندر نہ نماز نبوی دے اندر اے بات کتے محفوظ نہیں, کتے موجود نہیں. کعبہ دے رب دی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں جدے اندر آپ نے فرمایا ہوئے عورتاں نماز انج پڑھیا کرن تے مرد انج پڑھیا کرن. مسئلہ یاد کر لو. سب تو پہلا مسئلہ نماز شروع کرن تو پہلے یاد کر لو, عورت تے مرد دی نماز دے اندر بولو کوئی فرق نہیں. لیکن ایک فرق ہے وہ نماز دے اندر نہیں. وہ فرق سنو, ایک مرد امامت کراندا ہے, ایک عورت امامت. عورت بھی امامت کروا سکتی ہے لیکن عورتاں دی, مرداں دی نہیں. جس طرح مرد امامت کرواندا ہے نا, عورت بھی امامت گھر دے اندر کروا سکتی ہے. اگر کوئی عورت حافظہ ہے, عالم ہے, پڑھی لکھی ہے, نماز دے احکام مسائل جان دیے, گھر دے اندر جماعت کرائے. حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد دی روایت ہے, آپ نے فرمایا ان ام ورقہ امرہا, سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک نے حکم دیتا کہ آپ نے گھر دے اندر عورتاں دی امامت کروایا کر. لہذا اے حدیث دلیل بن گئی عورت امامت کروا سکتی ہے. ہن عورت جدو امام بنے گی تے عورت دا امام بننا تھوڑا جہا الگ ہے, بس
तरीका अलग है। वो भला किवें? इमाम जदों हुण असीं नमाज़ पढ़नी, इमाम कित्थे खलोएगा? अगे खलोएगा, बाकी मुक्तदी सारे उहदे पिछे होणगे। ते लेकिन जदों औरत इमामत करवाएगी, औरत किवें खड़ी होएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा आयशा जिहड़ियां ने रवायत मुस्तदरक हाकम अंदर, अम्मी आयशा औरतां नूं घरां दे अंदर जमात करवाया करदियां सन, ते दरमियान दे अंदर वुसत दे अंदर एक सफ बन गई है ना, इस सफ दे 10 औरतां इधर ने, 10 औरतां इधर है। अम्मी आयशा थोड़ा जिहा उन्हां औरतां तो अगे हुंदियां, बस ए फर्क है बस इमामत दे अंदर कि फुल अगे नहीं होना, बस एवें एक कदम जिहड़ा है उस सफ दे अंदरों अगे होना है। बाकी 10 औरतां 5 औरतां इधर है, 10 5 इधर है। ते ए नमाज दा जिहड़ा इमामत दे तरीके अंदर फर्क है, बाकी नमाज पढ़न दे तरीके अंदर मर्द और औरत दा कोई फर्क। फरमाया कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और दूसरी बात, जदों एक नमाजी बंदा नमाज दी हालत दे अंदर दाखिल होण लगदा है, सब नालों पहले वुजू करना है। वुजू दा मौजू अलग है, वुजू कर लिया है। हुण इस बंदे ने खड़े होना है, सारे काम करन तो पहले, नमाज शुरू करन तो पहले फर्ज़ लाज़म वाजिब किबला रुख खड़ा होना। किबला रुख खड़ा होना फर्जी नमाज वास्ते लाजम है, फर्ज है, वाजिब है। अच्छा, एक बंदा सफ़र अंदर है, जहाज़ का सफ़र कर रहा है या बस का सफ़र कर रहा है, फैसल मोर डेवो वगैरह इस सफ़र च बैठा है, तो नमाज का वक़्त जा रहा है, उन फर्जी नमाज पढ़नी है, वो किवें पढ़ेगा फर्जी नमाज? सवारी दे अंदर फर्जी नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं, नमाज हुंदी कोई नहीं। फर्जी नमाज वास्ते सवारी तो नीचे उतरना पड़ेगा। अगर नफली नमाज है, नफली नमाज तसव्वुर कर लो, दिल नूं समझा लो कि रुख कर लिया भी इस तरफ किबला है, उधर करके नफल पढ़ सकते हो। लेकिन फर्जी नमाज वास्ते लाजम है, फर्ज है, जरूरी है जमीन ते उतरना। साढ़े तबलीगी भाई तबलीगी दौरे तो राईवेंट तो निकलते हैं, कराची सिंध तक जाते हैं, इंज ये बस जड़ा ना उन्होंने रेल गाड़ी के अंदर मुसल्ले विछाए ने, फर्ज पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, फर्जा वास्ते सवारी तो नीचे उतरना फर्ज है, लाजम है, जरूरी है, वाजिब है, क्योंकि किबला रुख होना वाजिब है। किबला रुख उदों तक असां तसल्ली ना हो नहीं सकते जदों तक ज़मीन ते उतर नहीं आवांगे। एक बस इधर नूं जा रही है, जदों इधर नूं जा रही है किबला इधर है, ते जदों मुड़ गई है तो बंदा फिर नमाज की हालत अंदर उहदा ते किबला ही चेंज हो जाएगा। फर्जी नमाज वास्ते ज़मीन ते सवारी तो उतरना की है, ये याद हो गया ना मसला। यदि दलील सुन लो तो फिर इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू अगले जुमे के अंदर बड़ी तवज्जो करना। रवायत अबू दाऊद दे अंदर फजा मक्का तो बाद वापसी ते हुनैन तो पहले नबी पाक नू शाम हो गई है, सहाबा इकराम नू शाम हो गई है। मेरे पैगंबर ने फरमाया है हुनैन तो पहले इस जगह दे ऊपर खैमे लगा दिते जान, क्योंकि रात जड़ा ना सारे सहाबा सफर की वजह तो थकावट दे अंदर रात इत्थे आराम करिए, जदों दिन चढ़ेगा फिर अगला सफ़र शुरू कर देवांगे। सहाबा इकराम ने मिल के पहला खैमा जिस वक्त जड़ छोड़े है पहला खैमा लगाया। आपने फरमाया इस खैमे अंदर कोई भी आराम ना करे। ए खैमा जितनी देर तक ए रात का जितना हिस्सा इशा ते फजर गुजारांगे, इत्थे आके नमाज पढ़ांगे, ये साडी मस्जिद है। एक रात वास्ते नबी ने क़याम कीता है, सब तो पहले उत्थे मस्जिद दा एहतमाम कीता है, फिर अगले खैमिया दा एहतमाम कीता है। सारे खैमे लग गए, मेरे पैगंबर ने इशा दी जमात करा छोड़ी है। आपने सहाबा इकराम नो खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ऐ मेरे सहाबा, हुनैन वाला बड़ा जंग जो कबीला है, ये ना होए रात नू कोई शरारत कर दे, कोई हमला कर दे, कोई ऐसा मामला नवा खड़ा हो जाए। एक सहाबी मेरा प्यारा उठे, बाकी सारे सहाबा आराम दी नींद ते सुकून करम, ते एक सहाबी ऊंची पहाड़ी ते चढ़ जाए और जाके पैरा दे, अगर हालात खराब हो लगन आके बतला दवे। इतनी बात की थी,
एक सहाबी रसूल सैयदना अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। महबूब जी मैं पहरा देने वास्ते तैयार हाँ। आपने फरमाया ले आंदा जाए, घोड़ा ले आंदा गया, सवारी आ गई है घोड़े दे। फरमाया अनस तैयार है जी? महबूब जी तैयार हाँ। अनस चढ़ जा घोड़े ते, चढ़ जा ते ऊंची ऊंची पहाड़ी ते अपनी सवारी नू ले जा, जाके पैरा दे। ए अनस चढ़ जा घोड़े ते, ए अनस चढ़ जा घोड़े ते। हजरत अनस घोड़े ते चढ़ गए ने, घोड़े नू दौड़ाना शुरू किया है। वो हुनैन दे करीब जड़ी ऊंची पहाड़ी है, जाके घोड़ा ते अपना उस जगह ते सवारी कलार छोड़ी है। रात दा अद्धी रात दा वक्त होया ते एवें थोड़ी जी थकावट ते नींद दे आसारात आए ने। जदों नींद दे आसारात अखां दे ऊपर आए, थकावट क्योंकि सारा दिन दा सफर कीता और सारी रात जाके अल्लाह दे मुजाहिदां हाफिज़ां ते कारियां दा पैरा दे रहे ने। हजरत अनस कहंदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया मैं उतर के थोड़ा जी चहल कदमी कर लवां ताकि तबीयत दे अंदर जड़ी सुस्ती है ख़त्म हो जाए, ए काहली ख़त्म हो जाए, चुस्ती आ जाए। फरमाया जदों मैं घोड़े तो नीचे उतरन लगा ते मैनू नबी पाक दी हदीस याद आ गई। ए अनस नबी पाक ने फरमाया सी चढ़ जा, उतरन दा जिक्र हदीस अंदर नहीं। ए अनस नबी ने नहीं फरमाया उतरन दा ते मैं नहीं नबी पाक दे कोलों पुछया ए अनस किते घोड़े तो उतर जाए ते नबी पाक दी ना फरमानी ना हो जाए। मैं फिर घोड़े तेरे आ ते जदों फजर दियां आज़ानां होइयां ने, आवाज़ां सुनियां ने, मैं फिर की कीता है दो नफल पढ़े ने, दो सुन्नतां पढ़ियां ने, सवारी दे ऊपर पढ़ियां ने ते फर्जां वास्ते ज़मीन ते उतरिया क्योंकि नबी पाक दा हुक्म आई। सुन्नतां पढ़ियां घोड़े दे ऊपर क्योंकि फर्जा वास्ते उतरना लाजम सीगा। मैं इस वास्ते हदीस की रोशनी नू मद्दे नज़र रखदिया नीचे उतरे हाँ। दो फर्ज पड़े ने, मैं फिर चढ़ के पैरा शुरू कर दिता है। इधरों सूरज तलू हो गया, सूरज दियां किरणा आ गई ने। नबी पाक मस्जिद के अंदर उस खैमे अंदर बैठे फरमा रहे ने ए मेरे सहाबा मेरा अनस दियां कोई खबरां ने, रात दा गया है अजे तक वापस नहीं आया। इधरों जिबरीले अमीन आ गए ने। ए महबूब जी परेशान ना हो, तुहाडा प्यारा बड़ा महफूज ते पुरअमन तरीके दे नाल होवेको। और झाड़ियां ते दरख्तां दे अंदरों घोड़ा दौड़ांदा आ रहा है। नबी पाक ने उस खैमे तो बाहर निकले ने जिन्हों मस्जिद बनाया। सहाबा इकराम दाएं ते बाएं खड़े ने। नबी पाक सल्लम खड़े हो के उस प्यारे दा इस्तकबाल कर रहे ने। आए ने घोड़ा खला रहे है ते ऊपर खड़े ने। फरमाया ए अनस नीचे उतर। आप नीचे उतरे ने। नबी पाक ने जदों चेहरे दी रंगत वेखी है, थकावट दे आसार वेखे ने, फरमाया ए अनस रात सवारी तो घोड़े तो नीचे उतर गया से। अर्ज की महबूब जी तुसी फरमाया सी चढ़ जाओ, उतरन दा जिक्र हदीस अंदर नहीं ते तुसी फरमा देवो चढ़ जाओ ते ए ना फरमाओ उतर जाओ ते मेरी की जरूरत है तुहाडे हुक्म दी हुक्म अदोली कर जावा। नबी पाक नूं ये जुमला ते प्यार ते अंदाज इन्ना पसंद आया है। अर्ज की महबूब जी फर्जा वास्ते उतरिया सा फिर चढ़ गया। नबी पाक नूं अंदाज तरीका इन्ना पसंद आया है। नबी पाक ने फरमाया अनस जरा आ ना मेरे सीने दे नाल लग। नबी पाक ने अनस नूं सीने दे नाल ला के घुट के फरमाया ए अनस कद औ जबता अल्लाह ने तेरे ते जन्नत नू वाजब कर छोड़े आए, जन्नत नू वाजब कर छोड़े आए। हजरत अनस अर्ज करते ने महबूब जी अगर जिंदगी दे अंदर कोई मेरे कोलों गुनाह हो जाए फिर भी जन्नत वाजब है। मेरे पैगंबर ने फिर मुस्कुरा के फरमाया हाँ मेरे प्यारे अगर तेरे कोलों जिंदगी अंदर गुनाह भी हो जाए कद औ जबता मेरी हदीस नू इंज मन्ने आई
जिवें मनन दा हक कई मेरी मनशा दे मुताबिक मन्निया मेरे हुक्म दे मुताबिक मन्निया तेरे ते जन्नत वाजब हो गई। हुण हज़रत अनस दे तासुरात सुनना ते ईमान नो तरो ताज़ा करना। हज़रत अनस फरमांदे ने सारी जिंदगी पैगंबर दे नाल गुजार देते, आप दी खिदमत अंदर गुजार देते, आप दे दाएं बाएं ते आप दियां खिदमतां करदियां ज़ियारतां करदियां गुजार दित्तियां। आप दी ज़ियारत करिए दिल अंदर बड़ी ठंड पैंदी, आप दी खिदमत करिए दिल अंदर बड़ा सकून आउंदा, आप दियां हदीसां ते अमल करिए दिल अंदर बड़ा सकून आउंदा। लेकिन उस दिन फजर तो बाद जड़ा सकून मैं महसूस कीता है, इंज लगदा है कि जन्नत अंदर भी ऐसा सकून नहीं मिलेगा। अनस केड़ा सकून महसूस कीता है? हज़रत अनस फरमांदे ने सारा दिन दियां थकावटां, रात दियां थकावटां, जिंदगी दे दुख ते परेशानियां मेरे दिलो दिमाग ते अखां दे सामने जदों नबी पाक ने फरमाया अनस अगे आ, अनस अगे आ, जदों अनस अगे आए ने फरमांदे ने अर्ज करदे ने जदों नबी पाक दे सीने नाल लग गया अल्लाह दी कसमें इन्ना सकून महसूस कीता है, जिंदगी अंदर कदी अनस ने इन्ना सकून किसी अमल अंदर नहीं महसूस कीता जिन्ना सकून नबी दे सीनाए पाक दे नाल चिमट के कीता है। फिर नाल ही पैगंबर ने जड़ा सर्टिफिकेट ते सन्नत अता कीती है, जिंदगी दे सारे ही दुख मटा छड्डे ने। कद औ जब ता ए अनस मुबारका होन। आखिर दवान।